the kind of language we use at home and school and in our workplace and in church is often a good indicator of the general direction we have taken in life. हम जिस प्रकार की बोली का प्रयोग करते हैं वो एक अच्छा सूचक है इस बात का कि हमारे जीवन में हमने कौन सी दिशा पकड़ी है. Because what we speak today will get translated into actions tomorrow. क्योंकि हम आज जो बोलते हैं वो कल कार्यों में परिवर्तित होगा. For example, sometime back in Kerala, a Muslim child was made to use hateful speech against Hindus and Christians. उदाहरण के रूप में कुछ समय पहले केरल में एक मुसलमान बच्चे से हिंदुओं और मसीहों के प्रति घृणित भाषा का उपयोग करवाया गया था. So that became a big controversy. Now, here in North India, in many religious festivals, you're seeing young boys dance to provocative religious songs. अब उत्तर भारत में हम ये देख रहे हैं कि बच्चे, कम आयु के बच्चे उकसाने वाले धार्मिक गीतों पर नाच रहे हैं. Now this is not going to take too much time for these children to begin to act on the words which they have been speaking and listening to. अब ज्यादा समय नहीं लगने वाला है जब ये बच्चे जिन गीतों को वो सुन रहे हैं और बोल रहे हैं, गा रहे हैं, उसके ऊपर वो अब कार्य करने लगेंगे. As per the Hindu newspaper this Friday, at least 50 children between the age of 13 and 17 have been jailed for carrying out communal violence in Bihar recently. हिंदू अखबार में इस शुक्रवार को यह लिखा गया था कि 13 और 17 साल के आयु के बीच के कम से कम 50 बच्चों को जेल भेज दिया गया है बिहार में सांप्रदायिक दंगे करवाने के लिए. So what they heard, they began to put it into action. तो जो वो सुन रहे थे उसको वो लोग ने कार्य में लाए. What they were singing, they put it into action. जो वो गीत गा रहे थे उसको उन्होंने कार्य में लाना शुरू कर दिया. If you hear or speak violent words against others, it will not be a surprise if one day you carry it out. अगर आप दूसरों के विरुद्ध में हिंसक शब्दों को सुनोगे या बोलोगे तो ये अचंभे की बात नहीं होगी कि एक दिन आप हिंसा को करोगे. And I learned this from Paul, who has been saying in the book of Ephesians. He says that if your community enjoys speaking about sexual sins, then it won't be long before people in your community start acting on those sexual sins. पौलुस हमसे कहता है कि अगर आपके समाज में लैंगिक पापों के बारे में लोग बात करते हैं, बात करने में उस आनंद लेते हैं, तो वो दिन दूर नहीं जब आपका समाज उन लैंगिक पापों को करने लगेगा. Let me read for you Ephesians chapter 5 and verse 5. मैं एफेसियों के 5वें अध्याय और उसके 5वें आयत को पढ़ूंगा. For you may be sure of this, that everyone who is sexually immoral or impure, or who is covetous, that is an idolater, has no inheritance in the kingdom of Christ and God. क्योंकि तुम ये जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं. Now, this verse begins with the word for. यह आयत की शुरुआत में पौलुस जो शब्द का इस्तेमाल करता है वो है क्योंकि, for or because, which means that Paul is making a connection with the previous verses. इसका मतलब है कि पौलुस इस आयत को पिछले आयतों के साथ
जोड़ रहा है। स्पेसिफिकली वर्स 3 and 4, खास करके तीसरा और चौथा आयत। So if you read verse 3 and 4, in verse 3 he had said that, leave alone committing the sins of sexual immorality, impurity and greed. Even talking about such sins is not fitting for a Christian community. There should be no talk about such sins in our community. तीसरे आयत में वो कहता है कि व्यभिचार, अशुद्ध काम और लोभ जैसे पापों को करना तो दूर, ऐसे पापों की चर्चा तक मसीही समाज में अयोग्य है। हमारे समाज में ऐसे पापों की चर्चा तक नहीं होनी चाहिए। नाउ ऑफ कोर्स वी हैव टू टॉक अबाउट इट व्हेन वी हैव टू करेक्ट पीपल। हमें जब लोगों को समझाना है तो हमें इन पापों के बारे में बात तो करना होगा। बट व्हाट पॉल मीन्स is that we should avoid all kinds of speech that normalize sexual sins. पौलुस हमसे कह रहा है, पौलुस का कहने का अर्थ यह है कि हमें हर प्रकार की वो बोली को त्यागना होगा जो ऐसे लैंगिक पापों को साधारण बनाता है। And then in verse 4 he told us about the kinds of speech that normalize such sins. और चौथे आयत में उसने हमें ऐसे बोलियों से परिचित कराया जो ऐसे पापों को साधारण बनाता है। So if you notice verse 4, if you read verse 4, first was obscene or vulgar language, or some translations will have filthiness. पहला जो बोली था वहां पर वो था अश्लील अथवा अभद्र भाषा या निर्लज्जता का प्रयोग। सेकेंड वॉज फूलिश टॉक, दूसरा था मूढ़ता की बातचीत, टॉक विच टेक्स सेक्सुअल सिंस वेरी कैजुअली। ऐसी बोली, ऐसी बातचीत जो लैंगिक पापों को बड़े हल्के में लेता है, and does not take into consideration the consequences of such sins, और ऐसी बोली जो इन पापों से उत्पन्न होने वाले परिणामों को बड़े हल्के में लेता है। एंड फाइनली द थर्ड वन, और आखिर में जो तीसरा है वो है दैट इज क्रूड और चीप जोक्स, और आखिर में वो है ठट्ठा करना या सस्ते अथवा अशोभनीय चुटकुले सुनाना। So when now Paul begins verse 5 with the word for, तो अब जब पौलुस 5वें आयत को शुरू करता है क्योंकि करके, he is giving us more reasons to be careful about the conversations that take place within our community. तो वो इसलिए वो शब्द का इस्तेमाल कर रहा है क्योंकि अब वो हमें और भी कारण दे रहा है कि क्यों हमें हमारे समाज में होने वाली बातचीत पर ध्यान देना चाहिए। He begins by saying, you may be sure of this. वो ये बोलकर शुरू करता है, तुम ये जानते हो कि, and NIV translation says, so your ESV translation says, you may be sure of this. NIV translation says, for of this you can be sure. It sounds as if Paul is just trying to convince you about some truth. ये ऐसा लग रहा है, ये अनुवाद इस तरह सुनाई पड़ता है मानो हिंदी अनुवाद इस तरह सुनाई पड़ता है कि पौलुस किसी सत्य के बारे में आपको याद दिला रहा है। And the English translation, it seems as if Paul is just trying to convince you about some truth. But that is not the mood that gets conveyed when you read the original Greek. लेकिन आप मूल यूनानी लेख को पढ़ोगे तो जो भावना वहां पर व्यक्त किया जाता है वो ये नहीं है। Actually, Paul is giving a command, an imperative here. पौलुस यहां पर एक आज्ञा दे रहा है। He is saying something like this. वो कुछ इस रीति से बोल रहा है। He is actually saying, for this you must know with certainty. वो कह रहा है तुम इस बात को निश्चितता से जान लो। इस तरह वो बोल रहा है। He says you must know. वो कह रहा है कि तुम इस बात को जान लो
It is a command. ये एक आज्ञा है. That is why the NRSV translation says, be sure of this. उसीलिए एक अनुवाद कहता है, इस बात को लेकर तुम निश्चित हो जाओ. In other words, he is saying, you better get this into your head. दूसरे शब्दों में वो कह रहा है, इस बात को तुम अपने दिमाग में बिठा लो. Because if not, you will face very serious consequences in the future. क्योंकि ऐसा नहीं किया तो आप भविष्य में बहुत गंभीर परिणामों का सामना करोगे. So when I say that the author is giving a command, do not take it lightly. जब मैं ये कहूं कि लेखक हमें एक आज्ञा दे रहा है, आप इसको हल्के में मत लेना. Because the author at the end of the day is the messenger of God. क्योंकि लेखक, बाइबल का जो लेखक है, वो आखिर में परमेश्वर का संदेशक है. This command is from God himself. ये संदेश खुद परमेश्वर से है. That is why it is written that no prophecy was ever written by an act of human will, but men moved by the Holy Spirit spoke from God. उसीलिए ये ऐसा लिखा गया है पवित्र शास्त्र में कि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से नहीं, पर भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते हैं. Here Paul is being moved by the Holy Spirit to speak God's message. यहां पर पौलुस पवित्र आत्मा से उभरकर परमेश्वर के संदेश को बोल रहा है. So take it very seriously. तो इसको आप गंभीरता से लें. He is saying you must know this with certainty. वो कह रहा है कि तुम इस बात को निश्चितता से जान लो. This is something you must not doubt. इस पर आपको कोई संदेह नहीं होना चाहिए. You must be convinced by this. इस बात पर आप निश्चित हो जाओ. So what is this important message that we should be convinced about? तो ये महत्वपूर्ण संदेश है क्या जिसके ऊपर हमें निश्चित हो जाना चाहिए? Paul says after this, उसके बाद पौलुस कहता है, he says, no sexually immoral or impure or greedy person who is an idolater has an inheritance in the kingdom of Christ and God. कहता है किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं. Now, first of all, he repeats the list of sins which he had mentioned in verse 3. पहले तो तीसरे आयत में उसने जिन पापों का उल्लेख किया था उसकी सूची वो फिर से देता है. The first one is sexually immoral. पहला जो है वो है व्यभिचारी. Now, sexually immoral person refers to any person who engages in sex outside the bonds of marriage. व्यभिचारी व्यक्ति का संबंध उस व्यक्ति से है जो शादी के बंधन से हटकर एक यौन संबंध स्थापित करता है. The second sin, दूसरा जो पाप है वो, that is an impure person. The second sinner that he talks about there is an impure person. और दूसरा जो व्यक्ति के बारे में, पापी के बारे में बात किया गया वो है अशुद्ध व्यक्ति. And an impure person refers not only to a person who engages in sex outside of the bonds of marriage, but engages in perverted sexual behavior like homosexuality. अशुद्ध व्यक्ति का संबंध उस व्यक्ति से है जो केवल शादी के बंधन से बाहर एक यौन स्थापित नहीं करता, पर सिर्फ उतना ही नहीं करता, पर विकृत लैंगिक व्यवहारों को दर्शाता है, उदाहरण के रूप में समलैंगिक लोग. एंड द थर्ड वन इज अ ग्रीडी पर्सन. और तीसरा है वो है लोभी मनुष्य. अ ग्रीडी पर्सन हियर रेफर्स टू अ पर्सन हु हैज गॉट टू अ स्टेज वेयर ही इज ऑब्सेस्ड विद सेक्सुअल सिंस. लोभी मनुष्य का संबंध उस व्यक्ति से है जो उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां वो लैंगिक पापों के धुन में ही रहता है. मोस्ट ऑफ
his or her time, energy, thinking, planning is spent on sexual sins. उनका ज्यादातर समय बल, सोच, योजनाएं लैंगिक पापों को करने में दिया जाता है. But this time Paul gives a new name for such people. लेकिन इस बार पौलुस ऐसे लोगों के लिए एक नया नाम देता है. He called such a person an idolater. वो ऐसे एक व्यक्ति को मूर्ति पूजक बताता है. That means when a person reaches that stage in life, sexual sins have taken the place of God in his life. इसका मतलब है जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में उस स्तर पर पहुंच जाता है जब वो सिर्फ लैंगिक पापों को करने के बारे में ही सोच सकता है, तो वो ऐसा एक स्तर है जहां पर लैंगिक पाप उसके जीवन में ईश्वर का स्थान ले चुके हैं. He cannot live without it. वो उसके बिना जी नहीं सकता है. He is obsessed with it. वो उसी के धुन में बना रहता है. That is why he is called an idolater. उसलिए उसको मूर्ति पूजक कहा गया है. And then let's read what Paul says after that. देखिए फिर पौलुस उसके बाद क्या लिखता है. He says, no sexually immoral or impure or greedy person who is an idolater has an inheritance in the kingdom of Christ and God. किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजक के बराबर है, क्या कहता है फिर, मसीह और परमेश्वर के राज्य में उसकी मीरास नहीं है. Now the Bible consistently talks about the theme of the kingdom of God. बाइबल लगातार परमेश्वर के राज्य के विषय में बात करता है. It shows God as king. परमेश्वर को राजा के रूप में दर्शाता है. Who has a people, जिसके लोग हैं, and he has given them a place to live in. और उसने उनको रहने के लिए एक जगह दी है. In order to depict this reality of the kingdom of God, और इस परमेश्वर के राज्य के सत्य को दर्शाने के लिए, we see in the Old Testament that like a king, God adopts the descendants of Abraham to be his people. पुराने नियम में हम देखते हैं कि एक राजा के समान परमेश्वर अब्राहम के संतानों को अपना लोग बनाता है. They were living in slavery in Egypt. वो मिस्र में दासत्व में रहते थे. He rescues them out of slavery. वो उनको दासत्व से छुड़ा कर लेकर आता है. He gives them the land of Canaan or the promised land. उनको वो कनान का जमीन अथवा वाचे का जमीन देता है. And this kingdom finally gets established under the reign of King David and his son Solomon. और आखिर में ये राज्य की स्थापना, ये राज्य स्थिर हो जाता है दाऊद राजा और उसके पुत्र सुलेमान के शासन में. But soon this kingdom disappears from the map because these people sinned and broke their covenant with God. लेकिन जल्द से ये राज्य नक्शे से गायब हो जाता है क्योंकि लोगों ने पाप करके परमेश्वर के साथ का जो वाचा है उसको तोड़ दिया. It showed that sin was the real problem that is coming in the way of the establishment of the kingdom of God. इस बात को दर्शाते हुए कि मूल समस्या पाप है जो परमेश्वर के राज्य की स्थापना में अड़चन डाल रहा है. And the permanent solution to that problem begins to be revealed in the New Testament. और उस समस्या का समाधान का प्रकाशन नए नियम में किया जाता है. Indeed, God is king over the whole universe. सचमुच परमेश्वर सारे संसार पर राजा है. But this time he himself takes a human form
and is born into this world. लेकिन इस बार परमेश्वर खुद एक मनुष्य का रूप धारण करके इस पृथ्वी पर जन्म लेता है. He is Jesus Christ. वो यीशु मसीह है. That is why Paul calls it the kingdom of Christ and of God. उसलिए पौलुस कहता है कि मसीह और परमेश्वर का राज्य. But Jesus Christ revealed that his kingdom will include people from all nations, not just the Jews. यीशु मसीह यह प्रकाशित करता है कि उसके राज्य में हर जाति के लोग शामिल होंगे, सिर्फ यहूदी नहीं. All those who believe in him will be part of his kingdom. जितने भी लोग उस पर विश्वास करेंगे वो उसके राज्य के भागी होंगे. All those who have faith like Abraham are actually the true descendants of Abraham. जितने भी लोग अब्राहम की तरह विश्वास करते हैं वही लोग सच में अब्राहम के संतान हैं. But like the Jews in the Old Testament, all his people everywhere are living in slavery to sin. लेकिन समस्या यह है कि पुराने नियम में यहूदियों के समान उसके सारे लोग जो सब जगह पर फैले हुए हैं वो पाप के दासत्व में जी रहे हैं. Their master is sin and they obey only sin. उनका जो स्वामी है, उनका जो प्रभु है वो पाप है और सिर्फ पाप की सुनते हैं. They were loyal to sin. वो सिर्फ पाप से विश्वास योग्यता रखते हैं, not to God as king. उनकी विश्वास योग्यता परमेश्वर से नहीं था जो राजा है. So Jesus came to rescue his people from the slavery of sin. यीशु मसीह अपने लोगों को पाप के दासत्व से बचाने को आया. He died on the cross for their sins. वो उनके पापों के लिए क्रूस पर मरा. And therefore God opened their spiritual ears and eyes. इसलिए परमेश्वर ने उनके आत्मिक कानों और आंखों को खोला. And when God blessed them in Christ, और परमेश्वर ने जब यीशु मसीह में उनको आशीषित किया, they turned away from their master's sin and recognized that Jesus is the true Lord. He is the King. जब उन्होंने पाप से मुंह फेरा तो उन्होंने ये जाना कि यीशु मसीह ही हमारा प्रभु है, वो हमारा राजा है. They were liberated from the slavery to sin. उनको पाप के दासत्व से छुड़ा दिया गया. To all those who believed in him, Jesus has promised a new place to live. जितने भी लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनको यीशु ने रहने के लिए एक नए जगह की प्रतिज्ञा की है. He has promised to create a new universe for them. उसने एक नया संसार की रचना की प्रतिज्ञा उनसे की है. A new heaven and a new earth. एक नया स्वर्ग और एक नई पृथ्वी. So there will be a king, there will be a people, there will be a land. तो एक राजा होगा, उसके लोग होंगे और एक जगह होगी. Which means that we are moving towards the establishment of this new kingdom. इसका मतलब यह है कि हम इस नए राज्य की स्थापना की ओर बढ़ रहे हैं. And all the people of King Jesus have been promised an inheritance in this new kingdom. और जितने भी लोग यीशु राजा पर विश्वास करते हैं उसके लोगों को प्रतिज्ञा दी गई है कि उनको इस नए राज्य में एक मिरास प्राप्त होगा. Let us read a few verses in the New Testament which promises about this inheritance. आइए हम नए नियम में कुछ आयतों को पढ़े जो इस मिरास की प्रतिज्ञा करती है. I want you to read Ephesians chapter 1 and verse 18. मैं चाहता हूं कि आप एफेसियों के पहले अध्याय और उसके 18वें आयत को पढ़ें. Ephesians chapter 1 verse 18. एफेसियों का पहला अध्याय 18वां आयत.
having the eyes of your hearts enlightened, that you may know what is the hope to which he has called you, what are the riches of his glorious inheritance in the saints. और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है. Now Paul is praying that the believers of Ephesus might be able to know what are the riches of the glorious inheritance which has been given to them along with all the other saints. तो पौलुस यहां पर प्रार्थना करता है इफिसुस के विश्वासियों के लिए कि वो जान सके कि उस महिमामय मिरास का धन कैसा है जिसकी प्रतिज्ञा उनसे की गई है, जिसका अनुभव वो बाकी के पवित्र लोगों के संग करेंगे. Now it is called a glorious inheritance. यहां पर उसको एक महिमामय मिरास कहा गया है. Because this inheritance will reveal God's glory. क्योंकि ये जो मिरास है, जो आने वाला मिरास है, वो परमेश्वर की महिमा को दर्शाएगा. How? कैसे? Because it will reveal God's grace towards sinners. क्योंकि वो परमेश्वर के अनुग्रह को दर्शाएगा जो पापियों की तरफ वो करता है. God's glory is revealed through his grace. परमेश्वर के अनुग्रह का प्रकाशन होता है उसके अनुग्रह के द्वारा. He has adopted unworthy sinners as his people and given them an inheritance. उसने अयोग्य पापियों को अपना लोग बनाया और उन्हें एक मिरास की प्रतिज्ञा दी है. Paul also wants us to know the riches or abundance of this glorious inheritance. पौलुस यह भी चाहता है कि हम उस महिमामय मिरास के धन को भी जाने, उसके धन को जाने. So what are those riches? What is that abundance which Paul is talking about? तो पौलुस ये जो धन के बारे में बात कर रहा है वो क्या है वो धन? That brings us to another verse. ये हमको एक और आयत की ओर ले जाता है, and that is in 1 Peter chapter 1 and verse 4. ये है पहले पत्रस पहला अध्याय चौथा आयत. 1 Peter chapter 1 and verse 4. पहला पत्रस पहला अध्याय चौथा आयत. To an inheritance that is imperishable, undefiled, and unfading, kept in heaven for you. लिखा है अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है. So I was reading from 1 Peter chapter 1 and verse 4. 1 Peter chapter 1 and verse 4. Peter is saying that through Jesus Christ, God has chosen us to obtain an inheritance. पतरस यहां पर कह रहा है कि यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हमें इस मिरास के लिए चुना है. What kind of inheritance? किस प्रकार की मिरास है ये? Peter says that this new inheritance, this new land which is talking about is imperishable. पतरस कहता है कि ये जो मिरास है, ये जो जमीन है जो वो हमें देने वाला है, वो अविनाशी है. Imperishable means that this new world will be immune to any kind of corruption or decay. अविनाशी होने का मतलब है कि ये नई जो दुनिया आ रही है वो किसी भी प्रकार की भ्रष्टता अथवा नाश से मुक्त है. It will not experience any form of spiritual or physical corruption. उसके अंदर ना कोई आत्मिक
ना शारीरिक भ्रष्टता होगी। डेथ इज आउट ऑफ द क्वेश्चन, मृत्यु का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। रादर लाइफ एंड वाइटैलिटी विल बी इन अबंडेंट सप्लाई इन दिस न्यू प्लेस, बल्कि वहां पर जीवन और उत्साह की भरपूरी होगी। Peter also says that this inheritance is undefiled. पतरस ये भी कहता है कि ये जो मिरास है वो निर्मल है। Means that this new world will be pure. इसका मतलब है कि आने वाला ये दुनिया विशुद्ध है। It will be unaffected by sin. पाप का कोई प्रभाव इस नई जगह पर नहीं होगा। It will be beyond the reach of any pollution of sin. ये पाप की कोई भी प्रदूषण से मुक्त होगा, उससे परे होगा। And Peter says it will not fade away. पतरस ये भी कहता है कि ये अजर होगा। Means it will not lose its pristine quality or character. उसका मतलब यह है कि उसके आरंभिक गुणों को कभी भी खोएगा नहीं। Our quality of life there will never lose its initial quality. कह रहा है कि हमारा जो जीवन है वहां पर, उसकी जो खूबियां हैं वो कभी नष्ट नहीं होगी वहां पर। It will endure eternally. अनंतता तक वो बनी रहेगी। All this means that it is an incorruptible, holy life will be richly supplied in this new world. तो इस आने वाले दुनिया में भ्रष्टता से मुक्त पवित्र जीवन को उदारता से हमें दिया जाएगा। And the quality of that life will never fade away. और इस जीवन की खूबियां कभी फीकी नहीं पड़ेंगी। That is why God wants us to know the riches of this inheritance. इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम इस मिरास के धन के बारे में जानें। Peter also says that this inheritance is reserved in heaven for all those who believe in Jesus. पतरस कहता है कि यीशु पर विश्वास करने वाले हर व्यक्ति के लिए इस मिरास को स्वर्ग में रखा गया है। So he locates the inheritance in heaven. तो वो इस मिरास को स्वर्ग में पाता है। So this is a place which is in heaven. तो ये एक ऐसी जगह है जो स्वर्ग में है अभी। He is talking about the heavenly city of Jerusalem which is going to come down to the new earth. वो उस स्वर्गीय नगर यरूशलेम की बात कर रहा है जो नए पृथ्वी बनने पर उतरकर नीचे आएगी। In this city God will dwell with his people forever. इस नगर में परमेश्वर हमेशा के लिए अपने लोगों के मध्यस्थ में रहेगा। And this is the most important blessing in this new world. और इस नई दुनिया में सबसे बड़ी आशीष ये है that God will dwell with his people. Let us read that in Revelation chapter 21 and verse 2 and 3. प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय और दूसरा और तीसरा आयत। Revelation chapter 21 verse 2 and 3. And I saw the holy city, New Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride adorned for her husband. And I heard a loud voice from the throne saying, Behold, the dwelling place of God is with man. He will dwell with them, and they will be his people, and God himself will be with them as their God. लिखा है, फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो।
फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वह उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। Do you sometimes get tired due to the sin in this world? क्या आप कभी इस दुनिया के पाप के कारण थक जाते हो? Telling God that it is very difficult to live in this sin-infected world. परमेश्वर को कहते हो कि इस पाप संक्रमित दुनिया में रहना बहुत मुश्किल है। Do you get frustrated that you still have to face the consequences of living in a sinful world? क्या आप पापमय दुनिया में रहने के परिणामों से अक्सर हताश हो जाते हो? You know, you're fighting sickness in your body, hatred from your enemies, fear of uncertainties, slander by those around you. क्या आप शायद शरीर की बीमारी से लड़ते हो, दुश्मन हैं जो आपसे बैर करते हैं, अनिश्चितता के कारण आपके जीवन में डर है, दुश्मन आपकी चारों ओर ऐसे लोग हैं जो आपकी निंदा करते हैं। God promises that one day all this will end. परमेश्वर ये प्रतिज्ञा करता है कि एक दिन ये सारी चीजों का अंत होगा। He is taking us to a place where there will be no sin, no corruption, no death. वो हमें ऐसे एक जगह पर ले जा रहा है जहां ना पाप होगा, ना भ्रष्टता होगी, ना मृत्यु होगी। There will be no more sickness or hatred or fear or slander. वहां पे ना बीमारी होगी, ना बैर होगा, ना डर होगा, ना निंदा होगी। Rather there will be health and love and courage and honor forever. बल्कि वहां पर हमेशा के लिए अच्छी सेहत, प्रेम, साहस और आदर होगा। You will be able to live a perfectly holy life there. आप वहां पर एक सिद्धता पूर्ण पवित्र जीवन जी पाओगे। And the greatest blessing you would have is to enjoy the full presence of God forever. और सबसे बड़ी आशीष जो वहां पर आप पाओगे वो ये है कि आप हमेशा के लिए परमेश्वर के पूर्ण उपस्थिति का अनुभव करोगे। Now let's come back to our verse. अब हम हमारे आयत में वापस आएंगे। Ephesians chapter 5 verse 5. Paul says that this inheritance is not for the sexually immoral, sexually impure, sexually greedy person who is called an idolater. पौलुस कहता है कि ये मिरास जिसकी बात हमने देखी है वचन से, ये मिरास व्यभिचारी, अशुद्ध व्यक्ति और उस लोभी मनुष्य के लिए नहीं है जिसको मूर्ति पूजक कहा गया है। Because this inheritance, as we read in Ephesians chapter 1 and verse 18, is for the saints, for the holy people. क्योंकि ये जो मिरास है, हमने एफेसियों के पहले अध्याय उसके 18वें आयत में पढ़ा कि ये पवित्र लोगों के लिए है। This inheritance is going to be inherited by those who are sanctified. ये मिरास उन लोगों के लिए है जो पवित्र होंगे। I want you to read what Paul says in Acts chapter 20 and verse 32. मैं चाहता हूं कि आप पौलुस को पढ़े जो प्रेरितों के कृत्य 20वें अध्याय 32वें आयत में वो क्या कहता है। Acts chapter 20 verse 32. प्रेरितों का कृत्य 20वां अध्याय 32वां आयत। And now I commend you to God and to the word of his grace, which is able to build you up and to give you the inheritance among all those who are sanctified. पौलुस कहता है, और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूं जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए गए लोगों में साझी करके मिरास दे सकता है। पवित्र लोगों को दिया गया मिरास है ये। Now this does not mean that
every Christian is already perfectly holy and sanctified in this world. इसका मतलब यह नहीं है कि हर मसीही इस दुनिया में सिद्ध रीति से पवित्र हो चुका है. But one thing is for sure, एक बात बिल्कुल निश्चित है, God is definitely making holy those who have been called into His presence in the heavenly Jerusalem. ये बात बिल्कुल निश्चित है कि परमेश्वर उन लोगों को पवित्र बना रहा है जिनको उसने अपने पवित्र उपस्थिति में बुलाया है उस स्वर्गीय यरूशलेम में. I want you to read Ephesians chapter 1 and verse 13 and 14. मैं चाहता हूं कि आप एफेसियों के पहले अध्याय और उसके 13वें और 14वें आयत को पढ़े. Ephesians chapter 1 verse 13 and 14. एफेसियों का पहला अध्याय 13वां और 14वां आयत. In Him, that means in Jesus, you also, when you heard the word of truth, the gospel of your salvation, and believed in Him, were sealed with the promised Holy Spirit, who is the guarantee or pledge of our inheritance until we acquire possession of it to the praise of His glory. कहता है, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी. वो उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो. When we believed in the gospel, when we believed in Jesus, God put a mark on us. How? He gave us the Holy Spirit. He sealed us with the Holy Spirit. हमने जब सुसमाचार के ऊपर विश्वास किया, अर्थात यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, तो परमेश्वर ने हमारे ऊपर एक छाप लगाया. वो छाप क्या है? पवित्र आत्मा. पवित्र आत्मा को दिया. And Paul says that this Holy Spirit is given as a pledge of your inheritance, down payment of your inheritance, guarantee of your inheritance. पौलुस कहता है कि ये पवित्र आत्मा हमारे मिरास का बयाना अथवा गारंटी है. How is the Holy Spirit a pledge or a guarantee of the inheritance? पवित्र आत्मा हमारे मिरास का बयाना अथवा गारंटी क्यों कहा गया है? Because the Holy Spirit will make us perfectly holy one day. क्योंकि पवित्र आत्मा हमको एक दिन सिद्ध तरीके से पवित्र करेगा. He is sanctifying our souls today. वो आज हमारी आत्माओं को पवित्र बना रहा है. That is why we are all growing in holiness. उसलिए हम सब पवित्रता में बढ़ रहे हैं. And He will also sanctify our bodies at the second coming of Jesus. और वो हमारे शरीरों को भी पवित्र बनाएगा यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर. He will perfect us, soul and body, for God's presence in the heavenly Jerusalem. वो हमें सिद्ध रीति से पवित्र करेगा आत्मा और शरीर में, ताकि हम परमेश्वर की उपस्थिति के लिए तैयार हो जाए उस स्वर्गीय यरूशलेम में. That is why the Holy Spirit is called the pledge or guarantee of your inheritance. उसीलिए पवित्र आत्मा को आपके मिरास का बयाना अथवा गारंटी बताया गया है. But those who continue to do sexual sins and live unrepentant lives prove that they have not believed in the gospel, that they have not received the Holy Spirit, that God has not called them into His presence in the heavenly Jerusalem.
लेकिन जितने भी लोग लैंगिक पापों में बने रहते हैं और एक पश्चाताप रहित जीवन जीते हैं, वो ये साबित करते हैं कि उन्होंने सुसमाचार पर विश्वास नहीं किया है, कि उन्होंने पवित्र आत्मा को नहीं पाया है, कि परमेश्वर ने उनको स्वर्गीय यरूशलेम में अपनी उपस्थिति में नहीं बुलाया है. Their lifestyle proves that they have no inheritance in the coming world. उनका जीवन शैली ये साबित करता है कि आने वाले दुनिया में उनका कोई मिरास नहीं है. We read about the city of heavenly Jerusalem in Revelation chapter 21. हमने प्रकाशित वाक्य 21वें अध्याय में इस यरूशलेम के, स्वर्गीय यरूशलेम के नगर के बारे में हमने पढ़ा. I want you to read what else is written about the city in Revelation 22 and verse 14 and 15. मैं चाहता हूं कि आप प्रकाशित वाक्य के 22वें अध्याय और उसके 14वें और 15वें आयत को भी पढ़े. वहां पर देखिए कि इस नगर के बारे में और क्या लिखा गया है. Revelation 22 verse 14 and 15. प्रकाशित वाक्य 22, 14 और 15. It says, "Blessed are those who wash their robes, so that they may have the right to the tree of life, and that they may enter the city by the gates. Outside are the dogs and sorcerers and the sexually immoral and murderers and idolaters and everyone who loves and practices falsehood." धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे. पर कुत्ते और टोने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हरेक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा. Only those who have washed their robes, stained by sin in the blood of Jesus, will enter the gates of the city. सिर्फ वो लोग जिन्होंने अपने वस्त्र पर लगे पाप के धब्बों को यीशु मसीह के लहू से धोया है, वही फाटकों से होकर इस नगर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं. Outside are the immoral persons, और बाहर रहेंगे व्यभिचारी. This is the same category of people that Paul calls as sexually immoral in our verse. ये वही लोग हैं जिनका वर्णन पौलुस हमारे आयत के अंदर करता है. It also says that outside are the idolaters. वो ये भी कहता है कि बाहर रहेंगे मूर्ति पूजक. This is the same word which Paul used for sexually greedy people in our verse. ये वही शब्द है जिसका पौलुस उपयोग करता है उन लोगों के लिए जो लोभ करते हैं व्यभिचार का. Such people have no entry into the city. ऐसे लोगों का इस नगर में कोई प्रवेश नहीं. Rather they will be thrown outside the city into hell. क्योंकि इन लोगों को इस नगर के बाहर नरक में डाला जाएगा. So what is Paul saying finally? तो आखिर में पौलुस क्या कह रहा है? Paul says that sexually immoral, sexually impure, greedy person has no inheritance in the kingdom of God. पौलुस कह रहा है कि व्यभिचारी, अशुद्ध जन, लोभी मनुष्य परमेश्वर के राज्य में उसका कोई मिरास नहीं है. That is a very serious consequence, और ये बहुत ही गंभीर परिणाम है. But what does he want us to do? वह हमसे क्या चाहता है? He wants that we should not create an environment suitable for such sins to prosper. वो चाहता है कि हम ऐसे पापों को बढ़ावा देने के लिए एक अच्छा माहौल ना बनाएं. He wants that we should create an environment. He wants that we should not create an environment suitable for such sins to prosper. He is saying that dirty speech,
becomes the soil for such sins to grow and multiply. वो ये कह रहा है कि गंदी बोली ऐसे पापों को बढ़ने और पनपने का मिट्टी है. गंदी बोली के मिट्टी में ये पाप पनपता है. Obscene language, foolish talk, coarse joking, अश्लील या अभद्र भाषा, मूर्खता की बातें, सस्ते अथवा अशोभनीय चुटकुले, and therefore we should do everything to cut off such speech from our community. इसलिए हमें ऐसी हर बोली को हमारे समाज से खत्म करना होगा जो ऐसे पापों को उत्पन्न करता है. Most of the time we ourselves do not speak such language. ज्यादातर समय हम में से ज्यादा लोग शायद ऐसी भाषा नहीं बोलते होंगे, but we tolerate it when it comes from other people. लेकिन हम ऐसी भाषा, ऐसी बोली को सहते हैं जब ये दूसरों से आता है. And we allow it to penetrate into our homes and churches and organizations. और हम उसको हमारे घरों और कलीसियाओं और संस्थाओं में प्रवेश करने देते हैं. For example, उदाहरण के रूप में, you choose a movie on Netflix. आप Netflix पर एक मूवी सेलेक्ट करते हो. It says that it is appropriate for children above the age of 13. वो कहता है कि 13 साल की उम्र से बड़े बच्चों के लिए ये उपयुक्त मूवी है. Invariably, those movies will have obscene language or coarse joking. और अक्सर इनके अंदर अश्लील भाषा अथवा अशोभनीय चुटकुले सुनाए जाते हैं. We must understand that Netflix's standards are not our standards. हमें यह समझना होगा कि Netflix के स्टैंडर्ड, आदर्श हमारे आदर्श नहीं है. We or our children or new believers in our church do not want to watch such movies which normalize sexual sins with their language. हमें या हमारे बच्चों या हमारे कलीसिया में आने वाले नए विश्वासियों को ऐसे मूवीज देखने की जरूरत नहीं है जो ऐसे लैंगिक पापों को साधारण बनाते अपनी बोली के द्वारा. Because there is a high chance that our children or these young believers will one day become so okay with that kind of a language that they will one day act out what they have been listening to. क्योंकि ऐसा करने से हमारे बच्चे अथवा नए विश्वासी ऐसी भाषा से समझौता कर बैठेंगे और एक दिन वही बातों को करेंगे जिनको वो सुन सुनकर आदी हो चुके हैं. The same thing happens with advertisements. यही बात एडवर्टाइजमेंट्स के साथ भी होता है. We must avoid programs that do not maintain our standards. हमको उन सारे प्रोग्रामों को अवॉइड करना है जो हमारे आदर्शों के अनुसार नहीं है. We will think, oh, the language is bad only in some parts of these movies or programs. हम सोचेंगे कि इन मूवी, इन प्रोग्राम्स के कुछ कुछ भाग में ही ये भाषा खराब है, बाकी तो पूरा मूवी अच्छा ही है. But over a period of many years, they draw our children and our church members into sexual sins. लेकिन एक समय के बाद ये हमारे बच्चों और कलीसिया के सदस्यों को लैंगिक पापों के अंदर खींच लेता है. And they will be disqualified from that rich and glorious inheritance. और आखिर में वो उस धनी और महिमामय मिरास से वंचित रह जाएगी. We must understand that when we tolerate such language in our homes or churches or organizations, we are playing loose with eternal destinies of people whom God has put under our charge. हमें ये समझना होगा कि जब हम हमारे घरों और कलीसियाओं और संस्थाओं में ऐसी भाषा को सहेंगे
तो हम उन लोगों की अनंतता के साथ खेल रहे हैं जिसकी जिम्मेदारी परमेश्वर ने हमको सौंपी है. And if there is anyone here engaging in a sexual sin, take this warning very seriously. अगर यहां पर आज ऐसा कोई भी है जो लैंगिक पाप में फंसा हुआ है, आप इस चेतावनी को बड़े गंभीरता से लें. Your lifestyle could disqualify you from an inheritance in the kingdom of God. आपकी जीवन शैली आपको परमेश्वर के राज्य की मिरास से वंचित कर सकती है. You may not go to the place God is preparing for believers. शायद आप उस जगह में नहीं जाओगे जहां परमेश्वर विश्वासियों को ले जा रहा है. So instead you are walking towards hell, बल्कि आप नरक की ओर चल रहे हो. What should you do? आप क्या कर सकते हैं? You must turn away from that sin and every other sin. आपको उस पाप और हर पाप से अपने मुंह को फेरना होगा. And receive Jesus' sacrifice for you. और यीशु मसीह के बलिदान को स्वीकार करना होगा जो आपके लिए किया गया था. Believe that He died for your sins. विश्वास करें कि वो आपके पापों के लिए मरा है. And when you do that, और जब आप ये करोगे, you will receive the Holy Spirit who will help you to live a holy life. He will begin to guide you into that rich and glorious inheritance. और जब आप ये विश्वास करोगे तो आप पवित्र आत्मा को पाओगे जो आपको पवित्र जीवन में चलाएगा, और वही आपको सम्मति देकर आपको उस धनी महिमामय मिरास तक पहुंचाएगा.